ध्यान ना देखो, क्वेश्चन नंबर 1, given that the cost standards for materials consumption are 40 kgs at rupees 10 per kg, madhvi, 40 kg at 10 rupees, compute the variances when actuals are 48 kg at 12 per kg। ਕਹਿੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ 40 kg ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ, ਔਰ ਹੋਇਆ ਕਿ 48 ਯੂਜ਼ ਹੋਏ 12 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਡਾਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਵੈਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ, ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਵੈਰੀ 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 ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝੋਗੇ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੰਨੀ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। बुक वाले के अकॉर्डिंग चलने लग गया तो पहला क्वेश्चन ही टेंशन अगला हो जाना। ठीक है, ध्यान ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਊਟਪੁੱਟ ਗਿਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ 1 kg 10 kg ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਦੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ, ਔਰ ਐਕਚੁਅਲ ਚ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ 1 kg ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਜਾਂ 10 ਕਿਲੋ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ 1 kg, 1 kg ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟਪੁੱਟ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ठीक है, तो समझ लो पहला। ठीक है, 1 kg आउटपुट ਲਈ ਇਨਪੁਟ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ 1000 kg ਆਉਟਪੁੱਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ 1 ਕਿਲੋ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਲੈਟ ਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਹਾਫ kg ਕਹਿ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ 1.5 kg। 1.5 kg ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 kg ਦਾ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ 1000 kg ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇੱਧਰ ਪੁੱਲ ਕਰ ਲਈਦਾ, बॉक्स लगा लेगा। तो मतलब 1000 kg ਲਈ 1500 ਕਿਲੋ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਰਡ ਬਜਟ ਲਿਖਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਲਿਖਦੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਲਈ ਲਿਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ। ਇਹੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। क्वेश्चन नंबर 1 ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚੀਜ਼ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਬਾਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 1 ਕਿਲੋ ਦਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਗਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਯੂ ਆਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਇੱਧਰ ਵੀ 1 ਕਿਲੋ ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਆਈ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਮੀਨਸ ਬਜਟ ਤੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਡ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕੀ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰਨਾ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਕੀ ਪੁੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਕਸ ਲੱਗ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਜਦ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ बजट और स्टैंडर्ड फर्क आना कोई बन नहीं सकता, बजट स्टैंडर्ड सब सेम। मींस व्हेन आउटपुट इज नॉट गिवन, बजट और स्टैंडर्ड इको ही है। समझे, B/S क्यों लिखा, बजट भी यही है स्टैंडर्ड भी यही। तो कॉलम्स की रह गई, एक बजट स्टैंडर्ड इकट्ठा हो गया और उस तो बाद क्या आया, एक्चुअल। कि रॉ मटेरियल इनपुट एक का या दो, एक तो ज्यादा है, एक को या तो मींस वेरिएंस कितने सॉल्व हो सकते हैं, 3 कर लो सॉल्व। ऊपर हेडिंग लिख लेनी, व्हेन आउटपुट इज नॉट गिवन द बजट इज इक्वल टू स्टैंडर्ड। आगे आंसर इन्हें 176 एडवर्स, 96 एडवर्स और 80 एडवर्स नहीं है। ठीक है, उस तो बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखो की गिवन है ਤੁਹਾਨੂੰ, मटीरियल ABC स्टैंडर्ड गिवन, एक्चुअल गिवन, आउटपुट है कितने भी क्वेश्चन स्टैंडर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ और एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਚ ਇਨਪੁਟਸ ਦਾ ਟੋਟਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। मींस अगेन बजट एंड स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम, तो सिंगल बनाओगे, बजट स्टैंडर्ड सेम ही, वो भी गिवन ही है, बस अमाउंट्स तुसी फाइंड कर। ठीक है, और मोर देन वन, और ऊपर की लिखा कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, तो कितने फाइंड करने, 5 वेरिएंस। तो नहीं मींस स्टैंडर्ड और एक्चुअल के सेंटर से की बनाओगे, गली हो जाऊगा। करो शाबाश क्विक। 11th क्वेश्चन देखो पूरे ध्यान नाल, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11 की कह रहा है, कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। चार पूछे। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड, हले तक जिन्ने क्वेश्चंस किते किते परचेज दा पॉइंट नहीं आया, यूज्ड दा ही आ रहा है। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड 9000 ਦਾ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਮੀਨਸ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ, 3 रुपीज आ गया रेट।
3000 यूनिट्स फॉर 9000 रुपीज, मतलब रेट की हो गया ₹3 per unit. Standard quantity of material required per ton of finished product 25 units. ਇੱਕ ਟਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਲਈ 25 ਯੂਨਿਟਸ ਇਨਪੁਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। Standard rate of material 2 rupees. Opening stock of material nil, closing stock of material 500 units. Finished production during the year, ਇਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ एक ही है, आउटपुट है। कल आई परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तीन चीजें एक्स्ट्रा दे, तिना दे लिंक च कुछ याद आया? ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेज गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन, कादा फार्मूला हो? रॉ मटेरियल आ रहा है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल्स की आंदा सी, कॉस्ट शीट दी स्टार्टिंग की हुंदी सी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की आंदा सी, रॉ मटेरियल कंज्यूम, कंज्यूम्ड कितना होगा? इस फॉर्मूले से होगा। ओपनिंग गिवन, परचेजेस गिवन, क्लोजिंग गिवन, मींस सब तो पहला काम होया कंज्यूम्ड फाइंड करो। कितना कितना दसो? ओपनिंग कितना? नील, परचेजेस 3000, क्लोजिंग 500, मींस कंज्यूम्ड आ गया 2500 यूनिट्स। किसी ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ? क्लियर? ਹੁਣ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਕੀ ਲਗਾਓਗੇ? FIFO, ਫਸਟ ਇਨ ਫਸਟ ਆਊਟ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਰਮਲੀ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਓਪਨਿੰਗ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ? ਕਰੰਟ ਪਰਚੇजेस ਤੋਂ। ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ? ਕਰੰਟ ਪਰਚੇजेस ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ 'ਚ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਰੋ। ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਨਾ ਗਿਵਨ ਕੋਈ, ਕਿ ਯੂਨਿਟਸ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਕਿਹੜਾ ਲਾਓਗੇ? ਸਟੈਂਡਰਡ। और करंट परचेज का की रेट आया? ₹3, और ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ डिवाइड करके। यस और नो? ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ? ਸਟਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਈ? ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਲਿਊਡ ਐਟ ਸਟੈਂਡਰਡ ਰੇਟ, ਕਰੰਟ ਪਰਚੇਜ ਪ੍ਰਾਈਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਟੇਬਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਜਟ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ? ਬੋਲੋ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਗਲੀ ਤਾਂ ਬੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਬਜਟ, ਸਟੈਂਡਰਡ, ਐਕਚੁਅਲ ਲਿਖਿਆ। ਬਜਟ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ? 25 into 250, कितने टन ਲਈ? पर टन ਲਈ 25 to 50 1 टन डन। एक्चुअल ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? एक्चुअल ਚ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ 2500 ਯੂਨਿਟਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਡ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ? ਆਊਟਪੁੱਟ ਪਤਾ 80 ਟਨਸ। ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਪਤਾ? 80 ਟਨਸ। ਐਕਚੁਅਲ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤਾ? करंट परचेज चो। तो कंज्यूम्ड से किया होगा 2500 यूनिट्स, ₹3 वाले 7500। ओपनिंग वाला फिलहाल लिख लिया, बट नेल तक ਉਹਦਾ कोई इफेक्ट नहीं आना, ठीक है ना? नॉट फॉर एग्जाम, रिटन ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? पेपर च ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੀਲ ਵਾਲੇ ਦਾ ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਨੀਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਸੋ ਨੋ ਨੀਡ ਟੂ ਰਾਈਟ। ਬਟ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੀਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਆਣਾ ਨਾ, पर स्टैंडर्ड रेट यूज होना इसलिए थे लिखना इंपॉर्टेंट लगता था, ठीक है राजा? हूँ दसो प्रोडक्शन गिवन है 80 टन, तब प्रोडक्शन की करोगे? फुल करके की लगाना? मैजिक बॉक्स, एक टन दूजा हो गया। हूँ जब तीनों चीज़ा आ गई, तीन वेरिएंस हो जाओगे, यस और नो? ठीक है। गल आई कि क्वेश्चन नंबर आ वाला, एक सेकंड देखो, 7th। पिछला तो इजी से निकल गया, क्यों? क्योंकि उत्थे ओपनिंग स्टॉक यूज नहीं होया, ओपनिंग स्टॉक यूज नहीं होया है ना, क्योंकि वैल्यू उन्हें की क्या सी है ही नहीं सी साढ़े को ओपनिंग स्टॉक। आ वाला क्वेश्चन दसो हम, तुसी दसना हूँ सारा। कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, मतलब वही पहले तीन। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज्ड कितनी? 3000 यूनिट्स। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज्ड ₹14,000।
परचेज गिवन है 3000 यूनिट्स और रेट की गिवन है अमाउंट टोटल 14000 पर यूनिट आ जाऊगा कि ना 4.6667 इतना आ गया रिपीटेड है ना ओके उस तो अगली चीज नेक्स्ट सानू गिवन है स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड पर टन ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट 20 यूनिट्स चाहिए या एक टन ਲਈ स्टैंडर्ड प्राइस 5 रुपीज ओपनिंग स्टॉक 100 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक 600 यूनिट्स एंड फिनिश आउटपुट 100 टन्स सब तो पहला कंज्यूम्ड फाइंड करी बोलो ओपनिंग स्टॉक कितना अच्छा 100 प्लस परचेज कितने क्वांटिटी करते रुपीज ऐड 100 यूनिट्स प्लस 14,000 रुपीज 3000 यूनिट्स माइनस की करना 600 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक 100 प्लस परचेजेस 3000 माइनस 600 क्लोजिंग तो 2500 यूनिट्स आ गए कंज्यूम ਹੁਣ 2500 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫੀਫੋ ਲਗਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਓਪਨਿੰਗ ਸਟਾਕ ਐਂਡ ਫਿਰ ਆਊਟ ਆਫ ਕਰੰਟ ਪਰਚੇजेस ओपनिंग स्टॉक च की रूल याद किया स्टैंडर्ड रेट वेरी गुड स्टैंडर्ड रेट वाज 5 रुपीज ਤਾਂ मतलब ਜਿਹੜੇ 100 यूनिट्स ਇੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 500 रुपीज ਐਂਡ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ 2400 ਕਿੱਥੋਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕਰੰਟ परचेजेस सो रेट है अमाउंट आ गया ठीक है किसी ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਡੈਸੀਮਲਸ ਲਵਾਂ डाउट लगे यू कैन ऑल्सो डू कि 40 ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਦੋ 2400 इंटू यस फ्रैक्शन यूज करके देख लो जितना आंदा उससे राउंड देख लियो कितना बनना करिए चेक पहला ही आ गया देखो आप दिक्कत ही नहीं हुई किन्ने डेसिमल्स वाला पंगा ही नहीं पैना फ्रैक्शन यूज कर लो इस जगह पे ठीक है क्लियर है क्योंकि ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 4.66 ਲੈ ਲੋਗੇ ਅਲੱਗ ਆਣਾ 67 ਲੈ ਲੋਗੇ ਅਲੱਗ ਆਣਾ 66666 ਚਾਰ ਲੈ ਲੋਗੇ ਅਲੱਗ ਆਣਾ ਤਾਂ फ्रैक्शन यूज कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्वेश्चन ठीक है क्लियर है प्रॉब्लम जो निकल गई इस वाली अगली चीज ਹੁਣ रॉ मटेरियल एक है या दो आ एक ही है तो गली नहीं बननी ओके बजट ਲਈ डाटा बोलो मावी 20 इंटू 5 100 आ गया एक्चुअली डाटा इथों पिक करना एक्चुअली डाटा इथों पिक करना 100 यूनिट्स 5 रुपीज वाले एंड 2400 रुपीज यूनिट्स इन्ने वाले 11200 पाना जितना भी पाना ठीक है सो साढ़े को आ गया पूरा सवाल आउटपुट्स लिखो हूँ कितों क्वेश्चन आउटपुट कितना सी कहता एक्चुअली प्रोड्यूस होए 100 टन्स फिनिश प्रोडक्ट कितना रेडी होया 100 टन्स सो असि उत्थे आउटपुट लिख लिया 100 टन्स ओनू बोरो कर लिया मैजिक बॉक्स लगा लिया इत्थे आ गया 2000 रेट इधरों बोरो कर लिया अमाउंट भी आ गया ठीक है हुण गल आई वेरिएंस पहला वेरिएंस की है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मींस 10,000 माइनस 11,700 इत्थे हुण इकट्ठा लगा लो क्योंकि उधर जेड़ा एक्चुअल च दो पार्ट्स लिखे वो ए और बी वाइज नहीं आ वो इक्को दे ही दो रेट्स आ तां इदा लिखे मटेरियल एक ही है यस और नो फर्क समझ रहे हो सो सीधा 10,000 और 11,700 तो तुहाडे को 1700 एडवर्स आ गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस सुनो पूरे ध्यान ना वेरी गुड मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आना स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यही कर दे प्लस स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी दो पार्ट्स ऐड करके करना मैं क्योंकि 100 यूनिट्स अलग रेट वाले सी 2400 यूनिट्स अलग रेट वाले सी की करना पिया दोनों के रेट्स का वेरिएंस इनटू क्वांटिटी दोनों के रेट्स का वेरिएंस तो क्वांटिटी डाउट है पक्का क्लियर है कितना शो करोगे इस पैटर्न कितने गया आ वाला ठीक है क्लियर है बोलो इतना कोई डाउट तो देखो 5 रुपए सोचे सी 5 रुपए जी एक्चुअल रेट है ओपनिंग स्टॉक का स्टैंडर्ड रेट ही लिया सी कोई वेरिएंस आया नहीं दूसरी जगह वेरिएंस आया
ਤੀਜਾ ਵੇਰੀਐਂਸ ਬੋਲੋ। यूजेज च कोई दिक्कत नहीं, यूजेज वाले च कोई दिक्कत नहीं, वो च दो पार्ट चो ना कि इको च हो जाना। एक च क्यों, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी करके रेट तो इधरों ही लेना, तो सीधा 2500 यूज करके कर लो। इस पैटर्न से चलो। कोई डाउट? करो सॉल्व। हाँ दोनों ही कर, दोनों लिंक्ड है ताही इकट्ठे करवाए ना। इत्थों करो। क्वेश्चन है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਆ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ क्वेश्चन ਦੀ ਫੋਟੋ ਗਰੁੱਪ ਚ ਪਾ ਲਓ ਦੋਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।